We are now going to start with the class. We have started discussion about the theories of evolution. In that, we have covered Lamarckism, which was the theory of use and disuse. Use, and it is also called by the name inheritance of acquired characteristics. Next, we have started with what is called as Darwinism. Darwinism is a theory of natural selection. The book was written by Alfred Wallace and Darwin in the year of 1859, and the name for that book was Origin of Species. So this is some basic factual information that you have to learn about Darwin book. Darwin की book का नाम क्या था, in which year it came, and next who has written that book. Just before starting, tell me in which year Louis Pasteur has done his experiment. In which year Louis Pasteur has done their experiment of rejection of agenetic theory? Please don't see in the back. Just tell me whosoever remember. In which year Louis Pasteur disapproved the theory of abiogenesis? Anyone remember that? Anyone remember that or not? No one remember. I guess अभी तो आप लोगों की सबकी छुट्टियां हैं, सब लोग घर पर हो. You can put a maximum 15-20 minutes. The topic that we have done in the previous class is just 15 minutes. It takes hardly 15 minutes to revise that. So I guess you can revise that. अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो चीजें बहुत पाइल अप हो जाएंगी and eventually it will lead you to end up like आपको कुछ याद नहीं रहेगा. So try to revise the things as soon as they are done in the class. Otherwise चीजें पाइल अप हो जाएंगी तो कभी वो कंप्लीट होंगी ही नहीं. उनको कंप्लीट करना है, so you have to revise that. Yes, it was 1800. In which year Opper and Halden gave the theory? Which theory is given by Opper and Halden? Which theory was given by Opper and Halden? Opper and Halden. Chemical evolution. किस year में आया था? In which year Opper and Halden gave the theory of? Yes, it is in 1929. Next is who has gave the evidence for Opper and Halden chemical evolution theory? किस एक्सपेरिमेंट से एविडेंस मिला था ऑपर एंड हेल्डन की थ्योरी का? स्टैनले एंड मिलर. नो, इट्स स्टैनले मिलर, उसका नाम है दीप्ति. स्टैनले एंड मिलर नहीं है. स्टैनले मिलर एक पर्सन है एंड यूरे इज द अदर पर्सन. सो इट इज स्टैनले मिलर एंड यूरे. तो इसीलिए हम उसको मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट के नाम से बुलाते हैं. किस ईयर में आया था वो एक्सपेरिमेंट? इन विच ईयर दे आर 1953. यस, चलो कोई तो पढ़ रहे हैं. So we are discussing about the Darwinism. Darwinism की theory को बोला theory of natural selection, whereas Lamarckism was theory of use and disuse. जो चीज use हुई वो next generation में transmit हो जाएगी, inherit हो जाएगी. That's why that is also called as inheritance of acquired characteristics. Because आपके पास एक organ था, आपने उसको बहुत excessively use किया. So वो organ आपने acquired कर दिया. Acquire means you have gained in through your life. फिर उस acquired characters को आपने अपनी next generation में transmit कर दिया. That was Lamarckism. Second one is Darwinism. Darwinism theory was called as theory of natural selection. नेचर ने सिलेक्ट करा है. कुछ ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से नेचर ने उस इंसान को या उस पर्सन को, उस स्पीशीज को सिलेक्ट करा है. इस थ्योरी के बारे में they have written in the book The Origin of Species, which was written in 1859 and it was written by Alfred Wallace and Darwin. Next is, what is the basic funda behind Darwinism theory is that बहुत different kind के species होते हैं, अलग-अलग kind के species हैं. अब इनमें से जो species, the species which are of same, जैसे ऐसा होता है ना इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक. इंट्रास्पेसिफिक क्या होता है? एक जैसी जो स्पीशीज होते हैं उनको हम बोलेंगे इंट्रास्पेसिफिक. कंपटीशन, अगर कंपटीशन दो टाइप का होता है. कोई खाना हमें खाना है तो उसके बीच में कंपटीशन होगा, दैट इज
कंपटीशन। अगर वो ऐसी दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है जो दोनों स्पीशीज सेम है, वी विल कॉल इट इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। बट अगर ऐसी दो स्पीशीज जो डिफरेंट हैं उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, वी विल कॉल इट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो क्या होता है, जैसे सपोज मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और एक दूसरा ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और एक एनिमल है, सपोज एक हमारे पास एक लायन है। सो मेरे और जो मेरे साथ में ह्यूमन बीइंग है उसके बीच में जो कंपटीशन होगा दैट वुड बी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, बिकॉज इट इज बिटवीन द सेम काइंड ऑफ स्पीशीज, दोनों के दोनों ह्यूमन बीइंग है। लेकिन मेरे और लायन के बीच में जो कंपटीशन होगा दैट वुड बी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब एक चीज बताओ, ये मेरे पास खाना पड़ा हुआ है, वी हैव रिसोर्सेज विद अस, ठीक है। अब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा होता है कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा होता है? बताओ कौन सा ज्यादा होना चाहिए? बाय इंटर ज्यादा होना चाहिए, इंट्रा ज्यादा होना चाहिए। ये याद रखना, जिन दो लोगों की नीड्स सेम है, दोनों लोग सेम टाइप का खाना खाते हैं, उनमें ज्यादा कंपटीशन होगा, या जो दो लोग अलग काइंड का खाना खाते हैं? अगर दोनों सेम वाले जो खाना खाते हैं उनमें कंपटीशन ज्यादा है तो हम इंट्रा बोलेंगे, इंटर बोलेंगे। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, यस इट वुड बी सेम। जो दो लोग सेम खाना खा रहे हैं, ये मेरे पास खाना है और दोनों यही तरीके का खाना खाते हैं, देयर वुड बी मोर कंपटीशन। और जो इंट्रा स्पेसिफिक है, सेम टाइप की स्पीशीज है, ह्यूमन बीइंग ऑलमोस्ट सेम टाइप का खाना खाते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन है या कोई वेजिटेरियन है, बट अगर हम एक लार्जर एक्सटेंट पर देखें, दोनों ह्यूमन बीइंग का सेम टाइप का खाना है। यही अगर हमारे हमारे साथ कोई हॉर्स दिख जाएगा, जिराफ आ जाएगा, वो लोग पत्ते खा रहे हैं, घास फूस खा रहे हैं, तो उनका खाना अलग है, हमारा खाना अलग है। तो देयर इज अ चांस कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज लेस देन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। पहली चीज हुई ये। सेकेंड चीज, जो एक दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम वेरिएशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव वेरिएशन बिटवीन देम, मतलब उनमें कुछ कुछ चेंजेस हैं। ये चेंजेस कहाँ से आए? अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म, डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये जो चेंजेस आए वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आए। व्हाट डज नेचुरल सिलेक्शन मीन? कि नेचर ने कोई ऐसी चीज थी, नेचर ने कुछ ऐसा अलग सा करा, और जो इंसान उस चीज में सरवाइव कर पाया, जिसके पास एक अपर हैंड होगा उसमें सरवाइव करने का, वो सरवाइव कर जाएगा और दूसरे की डेथ हो जाएगी। नेचर में कुछ 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 चेंज आया, और उस चेंज की वजह से जो स्पीशीज उससे बच पाया, वो जिसके पास वैसी वेरिएशन है जो उसे बचा पाएगा, वो बच जाएगा और दूसरा मर जाएगा। The first evidence which came कि natural selection exist करता है, there was a theory which is called as industrial melanism. Industrial melanism. Melanin क्या होता है, किसी को पता है? Does someone know what is melanin? किसी ने पढ़ा है? कोई अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से है, मेलानिन का मीनिंग पता है? यस, इट्स अ स्किन पिगमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन के पिगमेंट की वजह से हमारा कलर ब्लैक होता है या लाइट होता है, हमारा स्किन पिगमेंटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कलर थोड़ा ब्लैकिश ब्राउनिश हो जाता है। तो मेलानिन एक काइंड का पिगमेंट है, जिसके अंदर मेलानिन ज्यादा प्रेजेंट होगा, वो लोग उनका कलर थोड़ा ब्लैक होगा। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ डिफेक्ट, इट इज समथिंग। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो आपको सन की रेस से प्रोटेक्ट करता है। दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी ने अडॉप्ट करा है। तो क्या होता है, जिन एरियाज में बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा सनरेज होती हैं, तो सनरेज की वजह से देयर इज अ चांस कि उनको स्किन कैंसर या स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो हमारी बॉडी उससे प्रिवेंट करने के लिए इट विल प्रोड्यूस अ पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज मेलानिन, जो हमें सन की रेस से बचाता है। दैट्स व्हाई जितने भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बिकॉज दे आर ऑन द इक्वेटर, एंड इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट आती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट की वजह से वहां पे उनको अपनी बॉडी को बचाना है, तो उनकी बॉडी विल develop more and more melanin, that's why their color is black than us.
और यही अगर हम नॉर्थ अमेरिका की साइड चले जाए, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा, वहां पे लोग गोरे होते हैं। क्यों गोरे होते हैं? बिकॉज ये अगर मेरा इक्वेटर, ये मेरा अर्थ है, अर्थ का ये इक्वेटर है एक, और इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन आर्टिक सर्कल। हम कहीं यहाँ कहीं लाई करते हैं, हमारा जो हमारा इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बात करता है, इक्वेटर से बात नहीं करता। एंड नॉर्थ अमेरिका कुछ इधर लाई करता है। तो देयर इज अ चांस कि यहाँ पे एज कम्पेयर टू इंडिया थोड़ा सा सन की रेज लेस है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं चाहिए, बॉडी में मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा, सो दे वर मोर फेयरर देन अस। ठीक है, ये चीज होती है। नेक्स्ट चीज क्या होती है कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हुआ, उसमें क्या था कि बिफोर 1800 सेंचुरी, 1800 सेंचुरी से 1800 से पहले पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, एक टाइप ऑफ मॉथ था जिसको हम बोलते थे पेपर्ड, पेपर्ड मॉथ, एक काइंड ऑफ मॉथ, एक काइंड ऑफ इंसेक्ट लार्वा, ऐसा कुछ बोल सकते हो, पेपर्ड मॉथ था, जिसको हम, जिसका जो साइंटिफिक नेम था वो था बिस्टन, बिस्टन बेटुलेरिया, बिस्टन बेटुलेरिया। क्या हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, जब इतना स्मोकी, इतना स्मोक वगैरह रिलीज नहीं होती थी, बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, स्मोक रिलीज होनी शुरू हुई। स्मोक रिलीज होने की वजह से क्या हुआ, वो सारा स्मोक डस्ट हमारा जितना भी ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज के ट्रंक पे जाके वो एक्यूमुलेट हो जाता था, जिसकी वजह से ट्री का कलर लिटिल बिट डार्कर साइड पे होना शुरू हो गया। तो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता था, इतना स्मोक नहीं है, तो उसकी वजह से ट्रीज का जो ट्रंक है उसका कलर बहुत लाइट होता था। जब लाइट कलर होता था ना, तो जो पेपर्ड मॉथ जो लाइट कलर के थे, वो क्या करते थे, उनका कलर ऑलमोस्ट इस ट्री के ट्रंक से मैच हो जाता था। जब उनका कलर ट्री के ट्रंक से, इंडस्ट्रियल नो 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 नो, बोथ आर डिफरेंट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मीनिंग है कि जब इंडस्ट्रीज वगैरह इंक्रीज, उनका नंबर इंक्रीज हुआ, दैट इज अराउंड 19th सेंचुरी, जब इंडस्ट्रीज बहुत हाई नंबर पे बढ़नी शुरू हुई, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज का नंबर बढ़ा, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ स्मोक रिलीज बाय दोज इंडस्ट्री या अमाउंट ऑफ पोल्यूशन रिलीज बाय दोज इंडस्ट्री वो बहुत इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से वो स्मोक जाके ट्रीज के ऊपर लग जाता था, तो वो ब्लैकिश सा कलर देता था। दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल मिलानिज्म, क्योंकि जो स्मोक या स्मोकी चीज रिलीज हो रही है फ्रॉम द इंडस्ट्री इज ब्लैक इन कलर। दैट्स व्हाई उसको बोला, जो स्मोक वगैरह रिलीज हो रहा है उसको बोला उन्होंने इंडस्ट्रियल मिलानिज्म। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज आने की वजह से देयर वाज इंडस्ट्रियल मिलानिज्म। तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले कोई स्मोक नहीं था, कुछ नहीं था। तो जितने भी मेरे ट्रंक्स वगैरह थे, ट्रीज के कलर्स थे, दे वर वेरी लाइट इन कलर। तो जो भी पेपर्ड मॉथ बहुत लाइट कलर के थे ना, उनका कलर ऑलमोस्ट सेम सा होता था इस ट्री के ट्रंक से। उसकी वजह से क्या होता था, जो डार्क कलर के कुछ कुछ रेयर स्पीशीज थी जो बहुत डार्क कलर के पेपर्ड मॉथ थे, नॉर्मली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले बहुत लाइट 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 कलर के थे। तो लाइट कलर, अब एक चीज बताओ, अगर मैंने कुछ एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर अगर मैं सिमिलर उसकी पत्तियों के ऊपर, ग्रीन कलर की पत्तियों के ऊपर ग्रीन कलर का कुछ कपड़ा रख दूंगी, तो मैं उसको नहीं पहचान पाऊंगी। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी कि हाँ इसके ऊपर कोई कपड़ा है अगर वो सेम कलर का होगा, बट अगर उसका कलर डिफरेंट होगा, इट वॉज इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि हाँ इस पेड़ के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है, कुछ क्लोथ पड़ा हुआ है। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पेपर्ड मॉथ वर लाइट इन कलर, तो ट्रंक का कलर भी लाइट है, पेपर्ड मॉथ का कलर भी लाइट है। तो जितने भी प्रेडेटर्स होते थे, प्रेडेटर्स क्या होते थे, प्रेडेटर्स प्रे को ढूंढते थे, उनको कुछ खाने के लिए चाहिए होता था। प्रेडेटर्स को पता नहीं चल पाता था कि यहाँ पे कोई प्रे पड़ा हुआ है, कोई पेपर्ड मॉथ पड़ा हुआ है, बिकॉज उसका कलर और ट्री ट्रंक का कलर बिल्कुल सेम था। तो इससे उनका वो बच जाते थे, अपना प्रेडेटर से बच जाते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया एकदम से इन ट्री का कलर चेंज होना शुरू हो गया डार्क की तरफ। अब डार्क कलर के ऊपर जब लाइट कलर का जो स्पीशीज है ना, वो इजीली पकड़ा जाएगा और उसको वो खा जाएंगे, बिकॉज वो वाला लाइट कलर वाला स्पीशीज अभी वाले इन्वायरमेंट के लिए फिट नहीं था, दैट वाज नॉट फिट फॉर
टुडेज एनवायरमेंट, तो वो मारा गया, वो मर गया। लेकिन कुछ कुछ रेयर स्पीशीज थी जो डार्क कलर की थी। अभी टाइम मिला इन स्पीशीज को ग्रो करने का, बिकॉज उनकी जो लाइट कलर की स्पीशीज थी वो मर रही है, उनको खाना मिल रहा है। अब जो खाना लाइट कलर वाली स्पीशीज खा रही थी वो इन डार्क कलर की स्पीशीज को मिल गया, और वो उनको खाना भी मिल रहा है बिकॉज लाइट कलर वाली स्पीशीज चली गई, और क्योंकि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कम हो गया, और उनको जगह भी मिल गई, क्योंकि वो प्रेडेटर से कैसे बच पा रहे थे, क्योंकि उनका कलर मैच कर रहा था ट्री के ट्रंक से, तो खाना भी मिला, और उनके पास ये जो उनका कलर का एडवांटेज था, उसकी वजह से क्या हुआ, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो बच जाते थे। सो वेरिएशन थी, क्या वेरिएशन थी, दैट वेरिएशन नेचर की वजह से आई, कि नेचर में कुछ ब्लैक कलर का स्मोक रिलीज हुआ, जिसकी वजह से नेचर ने किसको सिलेक्ट करा, जो स्पीशीज डार्क कलर की थी वो बच गई, और जो स्पीशीज लाइट कलर की तो वो मर गई। तो ये दो स्पीशीज जिसके अंदर वेरिएशन था एट द लेवल ऑफ कलर, वो नेचर ने सिलेक्ट करा, और इस वेरिएशन की वजह से, जो वेरिएशन था उसकी वजह से जो रिसोर्सेस कम थे, खाने के रिसोर्सेस कम थे, तो जिस स्पीशीज के पास कुछ एडवांटेज था ओवर द अदर, उसने स्ट्रगल करा, दैट वाज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जिस स्पीशीज के पास एक अच्छा वेरिएशन था, उसने उसको हेल्प करा स्ट्रगल करने के लिए, एग्जिस्ट, अपने आप को एग्जिस्ट करना, अपने आप को बचाना है, तो दे हैव डन अ स्ट्रगल। वेरिएशन हुई, वेरिएशन की वजह से उन्होंने स्ट्रगल करा, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस हुआ, एंड जिसने स्ट्रगल जीत ली वो फिटेस्ट था, एंड दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सो देयर वाज अ ऑर्डर। अगर हम बात करें हाउ माय दिस डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे आया, उन्होंने बोला देयर आर वेरिएशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अभी डोंट सी दिस म्यूटेशन, जो वेरिएशन था उन्होंने बोला नेचर के सिलेक्शन की वजह से एक वेरिएशन एग्जिस्ट हुआ। उस वेरिएशन के एग्जिस्ट होने की वजह से क्या हुआ, जब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज थी, रिसोर्सेज बहुत कम थे, तो उसकी वजह से कंपटीशन हुआ बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। लेकिन जो इंडिविजुअल के पास ये वेरिएशन बेनिफिट वाला था, दैट हैज स्ट्रगल्ड, उसने स्ट्रगल किया अपने एग्जिस्टेंस के लिए, और जो सबसे फिटेस्ट वन था दैट हैज सर्वाइव एंड द अदर वन बिकम डेड। दिस इज द थ्योरी ऑफ डार्विन नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर में कुछ चेंजेस होने की वजह से जो स्पीशीज लेवल पे कुछ चेंजेस आए, स्पीशीज लेवल पे इन दोनों में कुछ चेंजेस आए, ये दोनों सेम स्पीशीज हैं, दे आर अब इन दोनों को खाना चाहिए, तो उनके अंदर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हुआ, बट नेचर ने कुछ ऐसी चीज इसको दी और इसको नहीं दी, जिसकी वजह से ये स्ट्रगल करा इसने और ये सर्वाइव करा, एंड इट सर्वाइव। सो दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। So what is the concept? Concept था there is a struggle for existence and thus will ultimately lead to the survival of the fittest. मतलब struggle हुआ जीने के लिए और जो सबसे ज्यादा fittest था वो बच गया। ये थ्योरी सबको क्लियर हुई? इज दिस थ्योरी क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज दिस डार्विनिज्म थ्योरी? अगर हम एक स्टेप में समझाएं, दिस इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल है जीने के लिए, और जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। फिट वाले के पास कैरेक्टर कैसे आया, एक डिफरेंट कैरेक्टर कैसे आया, बिकॉज नेचर ने उसे कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर दे दिया, जिसकी वजह से वो उसको एक अपर हैंड मिला टुवर्ड्स अदर स्पीशीज। So the variation, जो positive, जो अच्छी variation थी, this eventually leads to the survival, the struggle जो जिनके पास वो variation थी उन्होंने struggle किया and they ultimately win the war. So इसको हमने natural selection क्यों बोला है? Because उन्होंने बोला जो variation आई है ना organism के बीच में, that was due to the natural selection, कि nature में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनमें ये changes आए। ये चीज समझ हुई? नेचर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से जो डार्क कलर्ड मॉथ थे उनका नंबर इंक्रीज हो गया, और जो लाइट कलर मॉथ थे उनका नंबर डिक्रीज हो गया। वेरिएशन क्या थी दोनों स्पीशीज में, कि कुछ डार्क कलर स्पीशीज थे, कुछ लाइट कलर स्पीशीज थे। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? टेल मी, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर और नॉट? 18 स्टूडेंट्स अभी हैं क्लास में और सिर्फ 3 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, व्हाट आई गेस।
आपको समझ आया या नहीं आया? नहीं आया दोबारा पूछ लो, आ गया तो हम आगे बढ़े। ठीक है, अब एक नेक्स्ट चीज थी, हमने सबसे पहले बोला देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन आता है ये वेरिएशन कैसे आई? तो अकॉर्डिंग टू माय डार्विन थ्योरी, ये वेरिएशन कैसे आई? हाउ दिस वेरिएशन अकर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म? टेल मी, डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग वेरिएशन कैसे आई ऑर्गेनिज्म में? According to Darwin theory, कैसे आई वेरिएशन? How the variation arises in due to the natural selection. So Darwin की थ्योरी के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन की वजह से there is a variation between organism. लेकिन जब डार्विन और मेंडल के जो लॉ थे they were related to ऑफ रिकॉम्बिनेशन, कि एक से एक पीक प्लांट था, एक छोटा था एक बड़ा था, दोनों को ग्रोथ कराया तो मेरे को बड़ा मिला, फिर बड़े को दोबारा ग्रोथ कराया तो मेरे को कुछ छोटे मिले कुछ बड़े मिले। दिस इज ऑल अबाउट मेंडलिज्म। मेंडलिज्म के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन जब हमने मेंडल और डार्विन दोनों का कॉन्सेप्ट हमने कंपाइल अप किया तो वी केम टू अ कॉन्सेप्ट कि जो वेरिएशंस हैं वो नेचर के सिलेक्शन की वजह से तो आई, बट देयर इज वन अनदर सोर्स जिसकी वजह से वेरिएशन आती है, इज द म्यूटेशन। ये मेरा डीएनए है, डीएनए के अंदर म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से वेरिएशन आएगी। सो उन्होंने ये बोला कि जब हमने डार्विन और मेंडल की थ्योरी को कंपाइल अप किया, we came up with a concept कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हुआ, जिसने स्ट्रगल करी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुआ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हुआ, वेरिएशन थी, सब सही है। बट उन्होंने बोला जो डार्विन ने कहा था ना कि वेरिएशन इज ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, उन्होंने बोला कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन एक तरीका नहीं है, देयर इज वन मोर मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। जब जीन के अंदर म्यूटेशंस होती हैं देयर इज अ टेंडेंसी फॉर अ वेरिएशन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि व्हाट आई विल से, मैं वो जैसे हम सिंपल एक लैंग्वेज में बताऊं, कुछ बच्चे होते हैं उनका आईज का कलर ब्राउन होता है, कुछ का ब्लैक होता है, कुछ का लाइट ब्राउन होता है, कुछ का ब्लू होता है। तो ये अलग अलग टाइप की वेरिएशंस हैं आईज कलर में। सेम स्पीशीज है, सेम सब ह्यूमन बीइंग है, बट सबके आईज कलर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ये डिफरेंस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से नहीं आया, ये डिफरेंस आया बिकॉज हमें जो ये आईज का कलर मिला है that was due to the genes that I have acquired from my parents. उन पेरेंट्स के जीन दो होते हैं, हमेशा हमारी बॉडी में क्रोमोसोम दो होते हैं, मतलब दो का पेयर होता है, एक पेयर आ रहा है मदर से, एक पेयर आ रहा है फादर से। तो दोनों का कंपाइल करके जो कलर आएगा वो बच्चे का कलर होगा। सो दिस इज द वेरिएशन व्हिच हैज अकर्ड ड्यू टू म्यूटेशंस और माय जीन। तो इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बोला कि वेरिएशन जो आई, जो डार्विन के कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक ये फ्लॉ था कि वेरिएशन को वो एक्सप्लेन कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन जब हमने डार्विन और मेंडल के रूल्स को कंपाइल किया, उन्होंने कहा दीज वेरिएशंस आर गोइंग टू अकर बाय टू रीजन, वन इज नेचुरल सिलेक्शन एंड अनदर वन इज म्यूटेशन। तो इस थ्योरी को उन्होंने नाम दे दिया नियो डार्विनिज्म। नियो मीन्स न्यू, डार्विन को थोड़ा न्यू, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, तो इस थ्योरी का नाम आया नियो डार्विनिज्म, और इट इज कॉल्ड एज सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। समझ आया? एवोल्यूशन की थ्री थ्योरी, वन इज लेमार्किज्म, सेकंड वन इज डार्विनिज्म एंड थर्ड वन इज नियो डार्विनिज्म और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। दिस थ्योरी इज 99% similar to Darwin theory, but it has one difference, that means that variation has also occurred from mutation. Is it clear to everyone? Is this theory clear to everyone or not? ठीक है, अब नेक्स्ट